Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Now, today we will take on chapter number 2, the change in profit sharing ratio among the existing partner. In the same lesson, in the last video, we have taken lots of topic like methods of goodwill, treatment of goodwill, workman compensation reserve. Now, we are taking the fresh topic, investment fluctuation reserve. Now, what is investment fluctuation reserve? Investment fluctuation reserve is a reserve which has been made from the profit of current year to adjust the fluctuation of the investment in the current market. Now, what is the treatment over here? The treatment is that when the book value and the market value of the investment is same, then the entire amount of the fluctuation reserve is transferred to the capital account in the old profit sharing ratio. अब भाई मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, जो संपत्ति जो है वो 10,000 की है और वो आज भी 10,000 की है, जब खरीदी थी तब भी 10,000 की है, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और उसके अगेंस्ट में जो रिज़र्व बनाया गया है तो वो का पूरा रिज़र्व हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नाउ सेकंड, व्हेन द market value of the investment is less than the book value. Now in such case what will happen? Now there are three cases. Fall in the value of is less than the investment fluctuation reserve. In such case, investment fluctuation reserve to the extent of the fall in value, the amount is credited to the investment account and the balance is credited to the partner's capital account in investment fluctuation reserve account DR to investment और to partner's capital account in old ratio. अब जो फ्लक्चुएशन है वो हम क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट के नाम से, जो उसका अंतर का जो मूल्य है, जो वैल्यू में जो गिरावट आई है वो हम रिजर्व में से ही, जैसे सपोज करो कि अगर 10,000 रुपये का संपत्ति है और अब 8,000 रुपये की होगी तो 2,000 रुपये का डाउनफॉल हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि उस 2,000 रुपये को से इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे और वो अमाउंट रिजर्व में से ही आएगा। और बाकी जो 8,000, बाकी अगर रिजर्व अगर 8,000 का है तो जो 10,000 का है 2,000 इन्वेस्टमेंट को की क्षतिपूर्ति को पूरा करने में यूज़ होगा। देन द 8,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर. Now fall in value is equal to the investment fluctuation reserve. Then what will happen over here? The reserve, the entire amount of investment fluctuation reserve is credited to investment. The investment fluctuation reserve to investment. Now third, the fall in value of is more than the investment fluctuation reserve. The entire amount of the investment fluctuation reserve among with the amount एक्सेस फॉल इन द वैल्यू इज क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टमेंट. अगर उल्टा हो गया है, 10,000 की संपत्ति है वो 14,000 की होगी, तो 14,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो द अमाउंट एक्सेस फॉल इन द डेबिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज द लॉस मस्ट बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन द ओल्ड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन एंड टू इन्वेस्टमेंट. तो हम जो हैं, जो पैसा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे और इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे. और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन इन द ओल्ड रेशियो. नाउ द थर्ड, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, इन सच केस द 3 एंट्रीज आर पास्ड. द एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Investment fluctuation reserve account DR to partners capital in old ratio. An increase in the value investment is debited to the investment and credited to revenue account. जो इन्वेस्टमेंट है हम उसको डेबिट करेंगे और रेवेन्यू अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. Now next one. Now accounting for the revaluation for the assets and liabilities when there is change in profit sharing ratio. अब होता क्या है कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रिवाइज करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम रिवाइज करते हैं,
तो हम ये देखते हैं कि उसके समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और सारा का सारा जो रिवाइज वैल्यू है हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसका महत्व क्या है? तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवाइज्ड by the help of the new account, revaluation account. It is just like a profit and loss adjustment account. The nature of the account is nominal account, and if there is a loss due to the revaluation, the revaluation account is debited and revaluation result in the profit. Now first entry is decrease in the value of assets. Revaluation account DR to assets. अगर assets में अगर कोई कमी होगी तो हम assets को credit करेंगे और एसेट्स बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। एसेट अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटीज बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटीज घटती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और इसका जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर वो प्रॉफिट है तो उसकी जो एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर उसका कोई लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। अब इसका अकाउंट बनाएंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। लॉस जो होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट जो होगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।